آج میں آپ لوگوں کو موڑ بنانے کا مکمل طریقہ کار بتاؤں گا کہ موڑ کیسے بنایا جاتا ہے اور موڑ میں کبوتر کو کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ موڑ میں جب کبوتر پڑتا ہے تو اس کو کیسے گرم کیا جاتا ہے، کیسے موڑ دیا جاتا ہے، کیسے بھاپ دی جاتی ہے، کیسے گالا دیا جاتا ہے، یہ سب طریقہ کار، کیسے خوراک دی جاتی ہے، یہ سب طریقہ کار آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کے آخر میں جو موڑ بنایا جاتا ہے، موڑ بنانے کا مکمل طریقہ کار میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، جس میں 20 چیزیں ڈلتی ہیں، وہ طریقہ کار میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اس طریقہ کار کے ساتھ میں نے 16 دن لگاتار دوڑا اڑایا ہے اور جیتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے یہ کرنا کہ اس ویڈیو کو ایک بار پوری دیکھ لیں تو آپ لوگوں کی محتاجی ختم ہو جائے گی۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں استاد 10 15 سال اپنے شاگردوں کو نہیں بتاتے۔ آپ صرف آج 10 15 منٹ کی یہ ویڈیو دیکھ لیں اور آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کسی بھی استاد، کسی بھی دڑ میں اپنا شوق کر سکتے ہیں۔ جب موڑ میں کبوتر شام کو 6 یا 7 بجے برابر ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر صبح اڑانے تک جو ایک منٹ کا پروسیس ہوتا ہے، ایک منٹ کا پروسیس ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، وہ میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا۔ اس رات استاد حضرات کبوتر کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں، گرم کرتے ہیں، گرم پانی دیتے ہیں، گالا دیتے ہیں، خوراک دیتے ہیں، بھاپ دیتے ہیں، تھکن اتارتے ہیں، یہ سب چیزیں میں آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اگر آپ لوگ دوڑا کا یا موڑ کا چیمپئن استاد بننا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے طریقہ کار یہی رکھنا ہے، یہی طریقہ کار، بے شک 16 دن موڑ پڑے، 20 دن موڑ پڑے، 30 دن موڑ پڑے، طریقہ کار یہی رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے میری وہ گولی استعمال کرنی ہے جو میں نے اپنے یوٹیوب چینل حاجی احمد خوشابی پر اپلوڈ کیا ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے پلنگ توڑ گولی، پلنگ توڑ پروازی گولی، وہ استعمال کرنی ہے صبح جاتے وقت، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کبھی کوئی ہرا نہیں سکے گا۔ تو میں آپ لوگوں کو آج موڑ کا مکمل طریقہ کار بتاؤں گا، کیا کیا کرنا ہے، اور موڑ کی جو مجون بنائی جاتی ہے وہ کیسے بنائی جاتی ہے وہ بھی اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا، جس میں 20 چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل حاجی احمد خوشابی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور گھنٹی کو دبا کر آل پہ کلک کر دیں۔ فرض کریں کہ آج شام کو 6 یا 7 بجے کبوتر برابر ہو گئے اور کبوتروں کو موڑ پڑ گیا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کبوتر کی کیسے تیاری کرنی ہے، کیسے اڑانا ہے۔ تو فرض کریں 7 بجے کبوتر برابر ہو گئے، آپ لوگوں نے کبوتر اتار لیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کبوتر کی بنیادی سنبھال کرنی ہے۔ بنیادی سنبھال آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کبوتر پہلے 10 15 منٹ بیٹھا رہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے کبوتر کو آہستہ آہستہ نوکے لگوانی ہے اور نوکے لگواتے جانا ہے، پانی پورا کرتے جانا ہے۔ جب کبوتر پانی پورا کرنا شروع کر دے اور آپ کو ایسا محسوس ہو کہ کبوتر پانی اپنا پورا کر رہا ہے تو آپ نے ایک کپڑے کی گدی لینی ہے، کپڑے کی گدی لینی ہے اور کبوتر کا جو پیٹ ہوگا، نیچے سینے والی ہڈی ہوگی، دونوں طرف آپ لوگوں نے اس کپڑے کو مارنا ہے، کیونکہ اس کبوتر کے گردے خشک ہو جاتے ہیں پانی کی کمی کی وجہ سے۔ جب آپ لوگ کپڑے کی گدی سے کبوتر کے سینے پر کپڑا چلائیں گے تو اس سے گردے چلنا شروع ہو جائیں گے اور کبوتر پانی ہضم کرنا شروع کر دے گا۔ جب کبوتر 2 سے 3 پانی والی بیٹھے کر لے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کبوتر کو موڑ والی گولی دے دینی ہے۔ موڑ والی گولی کا سائز ہونا چاہیے چنے جتنا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کبوتر کو 35 منٹ کے لیے بند کر دینا ہے، یعنی کہ دبو لگا دینا ہے، کبوتر کو جوٹ میں یا کسی اچھے بند پنجرے میں بند کر دینا ہے اور اوپر سے کپڑا لگا دینا ہے تاکہ کبوتر کو ہوا وغیرہ نہ لگے۔ یہ سب طریقہ کار آپ لوگوں نے ایک بند کمرے کے اندر کرنا ہے اور کبوتر کو ہوا نہیں لگنی چاہیے۔ جب کبوتر شام کو 7 بجے برابر ہوگا اور 8 بجے تک تقریباً وہ پانی پورا کر چکا ہوگا، اس کے بعد آپ لوگوں نے 8 بجے فکس 8 بجے اس کبوتر کو موڑ دے دینا ہے۔ اس کے بعد 35 منٹ کے لیے بند کر دینا ہے۔ آپ لوگوں نے 8 بجے موڑ دیا اور موڑ کے ساتھ 10 cc پانی بھی دے دیا۔ اس کے بعد 8:30 بجے آپ لوگوں نے کبوتر کو باہر نکال لینا ہے، اس جوٹ سے باہر نکال لینا ہے، کپڑے سے باہر نکال لینا ہے اور اس کبوتر کو کھلے کمرے میں چھوڑ دینا ہے۔ اس کو کبوتر کے کندے وغیرہ، کمر وغیرہ کو دبائیں اور تاکہ اس کے چال چلن ٹھیک ہو جائے۔ 7 بجے سے لے کر 8:30 بجے تک کبوتر اپنے جسم کا پانی بھی پورا کر چکا ہوگا اور موڑ والی گولی بھی ہضم کر چکا ہوگا۔ یہ ہو گیا سٹیپ نمبر 1۔ اس کے بعد آتا ہے سٹیپ نمبر 2۔ سٹیپ نمبر 2 میں آپ لوگوں نے کبوتر کی حالت کے مطابق، یہ نہیں کرنا کہ کبوتر خراب ہے تو بادام زیادہ دے دینے، کبوتر اچھا ہے تو اور بھی زیادہ دے دینے۔ کبوتر کی حالت کے مطابق آپ لوگوں نے 6 سے 9 بادام دے دینے ہیں۔
स्टेप नंबर 2 में जब आप लोगों ने 6 से 9 बादाम देने हैं तो इसके साथ आप लोगों ने 10 सीसी पानी देना है। 10 सीसी पानी में आप लोगों ने एक गोली लेनी है सुप्राविट गोली का आप लोगों ने चौथा हिस्सा लेना है। अगर ये गोली आप लोगों को ना मिले तो इसकी जगह एवियन कैप्सूल 400 mg ये कैप्सूल लेना है। इसको सुई से लीक करके इसका जो अंदर पानी होगा वो पानी आप लोगों ने 10 सीसी पानी में शामिल कर लेना है और उस कबूतर को दे देना है। बादामों के ऊपर जो खुराक दी है उसके ऊपर ये 10 सीसी पानी दे देना है। इसके बाद आप लोगों ने कबूतर को खुला कमरे में छोड़ देना है, बाहर नहीं, कमरे में छोड़ना है। जब आप लोग कबूतर को खुराक देंगे इस वक्त रात के 9 बज चुके होंगे। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आप लोगों ने कबूतर को गर्म करना है। रात को ठीक 10 बजे आप लोगों ने कबूतर को गर्म करना है। गर्म करने के लिए आप लोगों ने जो सामान लेना वो भी लिख लें। बड़ी इलायची के 2 दाने लेने हैं, आधी काली मिर्च लेनी है, 1 लौंग लेना है, 1 मुनक्का लेना है और 1 छुआरे का चौथा हिस्सा लेना है, ठीक है। और 1 चुटकी आप लोगों ने सूंड लेनी है। ये आप लोगों ने 150 सीसी पानी में बॉईल करना है। जब 25 सीसी पानी बच जाए तो यही 25 सीसी पानी उस कबूतर को दे देना है और इसके बाद आप लोगों ने उस कबूतर को अच्छी तरह बंद कर देना है। अच्छी तरह बंद कर देना है, जोड़ के अंदर बंद कर देना, ऊपर कपड़ा खेस वगैरह लपेट देना ताकि कबूतर को हवा वगैरह ना लगे। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आप लोगों ने कबूतर को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। इस दौरान आप कबूतर को आराम करने दें, खुद भी खाना खा लें और खुद भी आराम कर लें। 2 घंटे कबूतर को रेस्ट देनी है जोड़ के अंदर। जब आप लोगों ने 25 सीसी गर्म पानी दे देना है तो इसके बाद कबूतरों को इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आप लोगों ने कबूतर को देना है गाला। गाला कैसे बनाना है, कौन कौन सी चीज़ों से बनाना है, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिक्स 12 बजे आप लोगों ने गाले की तैयारी करनी है। गाला बनाने के लिए सोने का वर्क 1 अदद, चांदी का वर्क 1 अदद, खमीरा मरवरी चने जितना, दवाल मिक्स जवारदार चने जितनी, जवार मोरा 1 चावल जितना, कुश्ता शिंगरफ 1 चावल जितना है, मजून मूसली पावर ये भी आप लोगों ने 1 चने जितनी लेनी है और अंडे की जर्दी ये भी आप लोगों ने 1 चने जितनी लेनी है। ये सारी जो मैंने आप लोगों को आइटम बताए हैं ये सारे हाथ की हथेली पर रख के छुरी या चाकू की मदद से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है और उस कबूतर को दे देना है। लेकिन एक बात याद रखनी, जब आप लोगों ने ये गाला देना है तो उस वक्त कबूतर के पोट में पानी नहीं होना चाहिए जो आप लोगों ने 25 सीसी दिया हो। जब आप लोगों ने गाला बनाने की तैयारी करनी है तो साथ ही देचकी के ऊपर आप लोगों ने 1 किलो पानी लेना है और 1 किलो दूध, इसको बॉईल करना शुरू कर देना। गाला देने के फौरन बाद आप लोगों ने उस कबूतर को भाप देनी है। भाप ऐसे देनी है कि जो कबूतर के शोल्डर होते हैं दोनों शोल्डर के नीचे से भाप देनी है, दोनों शोल्डर के ऊपर से भाप देनी है, कमर को भाप देनी है और सीने वाली जो हड्डी होती है, गोश्त होती है, उसको हल्की सी भाप देनी है। भाप देने का तरीकाकार ये है कि जो देचकी होगी उसके ऊपर आप लोगों ने कपड़ा ले लेना है, नरम सा कपड़ा ले लेना है, उस कपड़े को गीला कर लेना है, उस कपड़े को ऊपर रख देना है। उसमें से जो भाप निकलेगी वो आप लोगों ने उस कबूतर को देनी है, डायरेक्ट भाप नहीं देनी और तकरीबन 1 फुट का फासला रखना है कबूतर को। जब अच्छी तरह भाप दे लें तकरीबन 10 मिनट आप लोगों ने कबूतर को भाप देनी है। जब भाप देनी है तो कबूतर को एक जगह खड़ा नहीं करना, यानी कि हाथ में पकड़ कर भाप के ऊपर आगे पीछे हिलाते रहना, एक जगह खड़ा नहीं करना, नहीं तो कबूतर जल जाएगा। उस कबूतर के कुंदों को ऊपर से नीचे से कमर को अच्छी तरह 10 मिनट भाप देनी है। 10 मिनट भाप देने के बाद फौरन आप लोगों ने 20 सीसी नीम गर्म पानी देना है और कबूतर को जोड़ में बंद कर देना है और ऊपर से हल्का सा कपड़ा डाल देना ताकि कबूतर को डायरेक्ट हवा ना लगे। ज़्यादा कपड़े नहीं डालने उस वक्त, बस हल्का सा कपड़ा डालना है ताकि कबूतर को डायरेक्ट हवा ना लगे। जब आप लोग कबूतर को गाला देंगे और भाप देंगे इस वक्त तक रात का 1 बज चुका होगा। आप लोगों ने कबूतर को गाला भी दे दिया, भाप भी दे दी। भाप देने के फौरन बाद आप लोगों ने 20 सीसी पानी भी दे दिया। इस वक्त तक रात के 1 बज चुके होंगे और इस वक्त से लेकर रात के 1 बजे से लेकर रात के 4:30 बजे तक आप लोगों ने कबूतर के पास नहीं जाना, ठीक है। जोट में रख देना है, ऊपर से नरम सा कपड़ा डाल देना है ताकि कबूतर को डायरेक्ट हवा वगैरह ना लगे। 4:30 बजे तक आप लोगों ने कबूतर के पास नहीं जाना, रात के 4:30 बजे। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 6।
स्टेप नंबर 6 ये है कि रात के 4:30 बजे आप लोगों ने कबूतर को बाहर निकालना है, कबूतर के कुंदे वगैरह दबाने ताकि उसकी जो हल्की फुल्की थकन होती है वो ठीक हो जाए। इसके बाद आप लोगों ने कबूतर को 10 सीसी पानी दे देना है, 10 सीसी नीम गर्म पानी दे देना है। 4:30 बजे आप लोगों ने कबूतर को 10 सीसी पानी दे दिया है। इसके बाद आ जाता है कबूतर को पलटाने का अमल। ये है स्टेप नंबर 7, पलटाने का अमल। अगर आप लोग कबूतर उड़ाते हैं 7 बजे तो आप लोगों ने 6 बजे कबूतर को पलट देना है। अगर आप लोग कबूतर को उड़ाते हैं 8 बजे तो आप लोगों ने 7 बजे कबूतर को पलट देना है। 4:30 और 7 और 8 के दरमियान अगर कबूतर को महसूस करके उसको पानी की ज़रूरत है तो पानी दे देना है। ये नहीं कि लकीर का फ़कीर नहीं बनना। चले फर्ज करते कबूतर को 7 बजे उड़ाना है तो 6 बजे आप लोगों ने कबूतर को पलट देना है। इसके बाद आप लोगों ने सुबह जाते वक्त जो खुराक दी जाती है, अगर टेम्परेचर है 40 तक, अगर है टेम्परेचर 40 तक तो आप लोगों ने कबूतर को बादाम देने हैं 16। अगर टेम्परेचर है 43 पर तो आप लोगों ने कबूतर को बादाम देने हैं 10। 40 टेम्परेचर तक 16 बादाम देने हैं, 43 टेम्परेचर पर 10 बादाम देने हैं। इसके बाद आप लोगों ने अपने कबूतर को पानी देना है। पानी उतना देना है जितना आप लोगों को कबूतर उठाता है। अगर 40 सीसी देते हैं तो 40 सीसी देना है, 30 सीसी देते हैं तो 30 सीसी देना है। इसके बाद आप लोगों ने कमरे के अंदर कबूतर को हल्का हल्का उड़ाना है ताकि कबूतर को समझ लग जाए कि उसके अंदर कितना वजन है। बादाम और पानी का वजन होता है, कबूतर को अगर यकदम छोड़ दिया तो वो घबरा कर बैठ जाता है। तो आप लोगों ने 1 या 2 से 3 4 दफ़ा आप लोगों ने कबूतर को हल्का हल्का हाथ के ऊपर उड़ाना है और दूसरी दीवार पर बिठा देना है कमरे के अंदर, ताकि कबूतर को महसूस हो जाए, जजमेंट हो जाए कि उसके पास कितना वजन है। इसके बाद स्टेप आ जाता है गोली का, जो सुबह जाते वक्त गोली लगाई जाती है। अगर आप लोग यही मुकम्मल तरीक़ाकार अपनाते हैं और मेरे YouTube चैनल हाजी अहमद खुशाबी वाली गोली बनाकर अपने कबूतर को लगाते हैं, जो जिस गोली के ऊपर थंबनेल लगा हुआ है पलंग तोड़ परवाजी गोली, वो गोली लगाएं और कबूतर को छोड़ दें। अगर कबूतर आप लोगों का 7 से पहले बैठ गया तो मेरा नाम बदल देना आप लोगों ने, क्योंकि इसी तरीक़ाकार के साथ, इसी गोली और इसी तरीक़ाकार के साथ मैंने 16 दिन लगातार कबूतर उड़ाए, 16 दिन लगातार कबूतर। जैसे जैसे मोड़ पड़ता जाता है आप लोगों ने परवाजी गोली की मिकदार को बढ़ाते जाना है। एक बात बताना दोस्तों भूल गए, जब आप लोगों ने कबूतर को पलटना है तो पलटने के बाद आप लोगों ने कपड़े की एक गद्दी बना लेनी है, उसको तवे के ऊपर गर्म कर लें या इस्त्री के ऊपर इस्त्री से गर्म कर लें। उस गद्दी को आप लोगों ने कबूतर के पोटे पर हल्की सी लगानी है और कमर पे हल्की सी लगानी है ताकि कबूतर ठंडा ना हो। ये हो गया कबूतर को तैयार करने का मुकम्मल तरीकाकार। इसी तरह बड़े बड़े उस्ताद कबूतर को मोड़ में इसी तरह तैयार करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मोड़ कैसे बनाया जाता है। मोड़ कैसे बनाया जाता है जिसके ऊपर सारी गेम डिपेंड करती है, इन्हिसार करती है। मोड़ बताने से पहले मैं सारी चीज़ें एक बार रिपीट कर देता हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल हाजी अहमद खुशाबी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और घंटी को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चीज़ें मैं रिपीट करता हूँ। फर्ज करें कबूतर मोड़ में बराबर हो गए 7 बजे 6 बजे 7 बजे बराबर हो गए। आप लोगों ने कबूतर उतारा, कमरे में ले गए, कबूतर की बुनियादी संभाल की, कबूतर के पानी पूरा किया, कबूतर को आहिस्ता आहिस्ता गद्दी लगाई ताकि उसके गुर्दे पानी को चलाना शुरू कर दें। जब कबूतर 2 से 3 बीटें पानी वाली कर लें तो इसके बाद आप लोगों ने चने जितना मोड़ वाली गोली उस कबूतर को दे देनी है, ठीक है। और 35 मिनट के लिए कबूतर को बंद कर देना है। 35 मिनट के बाद आप लोगों ने कबूतर को निकाल लेना है। इस वक्त तक रात के 8:30 बज चुके होंगे। मोड़ के साथ आप लोगों ने जो 10 सीसी पानी दिया होगा वो 8:30 बजे तक खत्म कर चुका होगा। इसके बाद आ जाता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आप लोगों ने कबूतर को खुराक देनी है, बादाम वाली खुराक देनी है। 6 से 7 बादाम आप लोगों ने उस कबूतर को दे देनी है और ऊपर से 10 सीसी पानी देकर उस कबूतर को खुला कमरे में छोड़ देने। जब आप लोगों ने 6 से 9 बादाम देने हैं और 10 सीसी पानी में आप लोगों ने सुपरावेट की गोली का चौथा हिस्सा या एवियन कैप्सूल उस पानी में मिक्स करके उस कबूतर को दे देना है और कबूतर को खुले कमरे में छोड़ देना है। इसके बाद आ जाता है स्टेप नंबर 3, कबूतर को गर्म कैसे करना है। गर्म करने वाली जो चीज़ें मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। जो चीज़ें बताई हैं वही चीज़ें लेनी है। 150 सीसी पानी लेना है। जब 25-30 सीसी पानी बच जाए तो आप लोगों ने 25 सीसी पानी कबूतर को देकर कबूतर को मुकम्मल तौर पर बंद कर देना है। आप लोग कबूतर को 10 बजे गर्म करेंगे और 10 से लेकर 12 बजे तक आप लोग कबूतर को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 25 सीसी पानी ये कबूतर 2 घंटे में हजम कर जाएगा।
12 बजे आप लोगों ने कबूतर को निकाल लेना है, हल्का हल्का कबूतर को दबाना है, कुंदे दबाने का, कमर दबानी ताकि उसकी साथ साथ थकन उतरती रहे। इसके बाद आ जाता है स्टेप नंबर 2। रात को 12 बजे आप लोगों ने कबूतर को गाला देना। गाला बनाने का जो सामान है वो सोने के वार के 1 अदद, चांदी के वार के 1 अदद, खमीर मरवरीद चने जितना और दवाल मिक्स जवारदार चने जितनी, जवाहर मोरा कुश्ते जवाहर मोरा 1 चावल जितना, कुश्ते शिंगरफ 1 चावल जितना, मजून मूसली पावर 1 चने जितनी। इसके बाद अंडे की जर्दी 1 चने जितनी। इन चीज़ों का आप लोगों ने बना लेना है गाला। हाथ के तेली पर गाला बना लेना और कबूतर को दे देना है। लेकिन जब कबूतर को गाला देना है तो उस वक्त कबूतर के पोटे में पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। और जब आप लोग पानी गाला बना रहे हो तो उसी वक्त आप लोगों ने 1 किलो पानी लेना है, 1 किलो दूध लेना है, उसको बॉयल करना। और इसके बाद गाला देने के फौरन बाद आप लोगों ने उस कबूतर को हल्की हल्की भाप देनी, कुंदों के ऊपर से, कुंदों के नीचे से, और कमर पर आप लोगों ने भाप देनी है। देचकी के ऊपर आप लोगों ने कपड़ा रख देना, वो कपड़ा गीला हो ताकि कबूतर को डायरेक्ट भाप नहीं दे, भाप ना लगे, इससे कबूतर जल जाता है। 10 मिनट भाप देने के बाद आप लोगों ने 20 सीसी नीम गर्म पानी देकर कबूतर को जोट में बंद कर दें। ऊपर से हल्का सा कपड़ा डाल दें, फुल बंद नहीं करना ताकि कबूतर को डायरेक्ट हवा ना लगे। फुल बंद नहीं करना, बस हल्का सा कपड़ा रख देना है। ये सारा तरीकाकार जो भी करना है आप लोगों ने कमरे के अंदर करना है। कबूतर को गाला दे दिया, भाप दे दी और इसके बाद फौरन 20 सीसी पानी देकर कबूतर को बंद कर दें। इस वक्त तक रात का 1 बज चुका होगा। इसके बाद आप लोगों ने 4:30 बजे कबूतर को चेक करना है। 4:30 बजे रात को कबूतर को चेक करना है। इसके बाद आप लोगों ने 4:30 बजे रात को कबूतर को 10 सीसी पानी देना है, कुंदे कमर वगैरह दबानी ताकि उसकी थकन साथ साथ उतरती रहे। इसके बाद आ जाता है कबूतर को पलटाने का माल। 7 बजे उड़ाना है तो 6 बजे कबूतर को पलटा कर कबूतर को बादाम देने। अगर 40 का टेम्परेचर है तो 16 बादाम, अगर 43 का टेम्परेचर है तो 10 बादाम। इसके बाद आप लोगों ने इस खुराक के ऊपर से कबूतर को पानी देना है। जितना भी आप पानी बनाते हैं, आपका कबूतर उठाता है उतना पानी दे देना है। और इसके बाद आप लोगों ने उस कबूतर को कमरे में आहिस्ता आहिस्ता उड़ाना है ताकि उस कबूतर को जजमेंट हो जाए कि उसके अंदर कितना वजन है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो कबूतर जब दड़े में आप छोड़ेंगे तो कबूतर आप लोगों का यकदम बैठ जाएगा। अब मैं आप लोगों को मोड़ बनाने का, तबाह कुन मोड़ बनाने का मुकम्मल तरीकाकार बताता हूँ। ये मोड़ आप लोग लिख लें, हमेशा बनाएं और हमेशा बाजियों में मजे लें। सबसे पहले आप लोगों ने सला जीत लेनी है आधा तोला। इसके बाद आप लोगों ने लेनी है जवार दारुल मवारी आधा तोला, काली मगा आधा तोला, सोने के वर्क 5 अदद फुल साइज के। इसके बाद आप लोगों ने लेने चांदी के वर्क लेने 8 अदद। इसके बाद कुश्ते 12 सिंगा आधा तोला, कुश्ते शिंगरफ आधा तोला। इसके बाद आप लोगों ने लेना है ज़ाफ़रान 1 तोला, कुश्ते फुलाद 1 तोला, 2 देसी अंडे की जर्दी, 2 देसी अंडे लेनी है, उनकी जितनी जर्दी होती है वो आप लोगों ने ले लेनी है। बड़ी इलायची के दाने 2 तोला, लौंग 2 तोला। और इसके बाद आप लोगों ने लेनी है फटकड़ी को सबसे पहले आप लोगों ने तवे के ऊपर खिल कर लेना है। फटकड़ी आप लोगों ने लेनी है आधा तोला। इसके बाद आप लोगों ने सूंड लेनी है, सूंड का पाउडर भी आप लोगों ने आधा तोला लेना है। जायफल के दाने ये भी आप लोगों ने 1 तोला लेना है। अक्कर करा 2 तोला, जलवत्री 1 ग्राम, सौंफ 1 ग्राम, पुराना गुड़ 3 तोला और छोटी मक्खी का शायद हस्बे ज़रूरत। हस्बे ज़रूरत से मुराद ये है कि आसानी से माजून बनाए। चीज़ें मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ, आप लोग आसानी से लिख सके ताकि। सबसे पहले लेनी है सलाजीत आधा तोला। आप लिखते जाएं, मैं आपको बताता जाऊं। सलाजीत आधा तोला, जवार दारुल मवारी आधा तोला, काली मगा आधा तोला, सोने के वर्क 5 अदद फुल साइज के, चांदी के वर्क 8 अदद, कुश्ते 12 सिंगा आधा तोला, कुश्ते शिंगरफ आधा तोला, ज़ाफ़रान 1 तोला, कुश्ते फुलाद 1 तोला, 2 देसी अंडे की जर्दी, बड़ी इलायची के दाने 2 तोला, लौंग 2 तोला, फटकड़ी आधा तोला, सूंड 1 आधा तोला, जायफल के दाने 1 तोला, अक्कर करा 2 तोला, जलवत्री 1 ग्राम, सौंफ 1 ग्राम, पुराना गुड़ 3 तोला और छोटी मक्खी का शहद हस्बे ज़रूरत। ये है वो मोड़ जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल हुई फिरती है। मेरे दोस्तों, ये है मेरा मोड़। ये मैं मोड़ इस्तेमाल करता हूँ, इसी तरीके से कबूतर को तैयार करता हूँ। और जो पलंग तोड़ गोलियाँ मैंने अपने YouTube चैनल हाजी अहमद खुशाबी पर अपलोड की हुई है, उसके ऊपर थंबनेल लगा हुआ है पलंग तोड़ गोली। वो गोली इस्तेमाल करें, ये मोड़ इस्तेमाल करें, ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं तो फिर मैं देखता हूँ कि आप लोग मोड़ में बार बार क्यों नहीं जाते। आप लोग मोड़ में बार बार जाएंगे, बड़े से बड़े उस्ताद को टक्कर देंगे। ठीक है दोस्तों,
اگر آپ لوگوں کو یہ میرا طریقہ کار پسند آیا ہے تو میرے یوٹیوب چینل حاجی احمد خوشابی کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ بھی کر دیں۔ تھینک یو دوستو، اللہ حافظ۔